Yeah. As we are in the final day of Parliament of World Religion, this is a finale we'll see and we'll show it to you. Look at the beauty of the vibrance, like the Parliament of World Religion has decided to bring. I think they live to the motto of this in real. And as I come from Bharat, India, we believe in Vasudev Kutumbakam. With me is, what's your name, ma'am? My name is Bahia Kusher. Where are you from? I'm from Palestine. I'm lawyer from Palestine and I'm peace ambassador in Peace Council. What brought you to this? I came here because I'm ambassador of peace. We know about it because we are active in like this kind of activities. I came here representing my achievement, Mr. Qasim Badr, and I like to attend like this kind of activity because I'm active in women rights and human rights. We are just talking about the human rights. We just saw what has happened in Afghanistan. I feel so my heart really bleeds for that. The girl who passes only the grade 3, after that they don't allow her to go to school. How do you feel as a woman about that? Yes, I feel very bad about this kind of situation, not only in Afghanistan, not only in your country, even in Middle East. There is many sad stories about what happened for the ladies and for the women. Yes, I feel very bad about it, and I think we need to do action, not only talking about this. We have to find solution for like this kind of cases. Can you say your name for record? How do you spell it? My name is Bahia Kusher, Bahieh Kusher. Thank you very much. Welcome. Now with me is Imam Arif Haskik. I can read from his card. He is from Detroit, Michigan. Let's hear from you what brought you to this conference. Greetings to all of you with peace. You know, in Islamic teaching, first words are learn and teach. So as a learned and taught man of thought, I came to learn some more here to see how we can be better people as well, campaigning with my friends here, Guruji Dr. Dilip Kumar and Swami and sister who is a lawyer. So those presenters, it's very interesting that Parliament of the World Religions leadership, thank God for them, organize this event very good, that we can learn one from another and see how we can live in better future and how we can enhance social and human rights everywhere, not only in one particular country, but as you see that, for example, I'm a great fighter for women's rights and children, and that is impacted everywhere. So we all have to work, make effort on this. So I'm always for human rights and building peace and unity everywhere. Human rights for everyone, not as convenient to you. That should be the motive, because everyone is inhuman, and we are so very honored that this organization exists and it lives to its meaning. Thank you so very You're much. welcome, exactly. Namaskar, आपका नाम? नमस्कार. So my name is स्वामी समर्पणानंद सरस्वती. स्वामी जी प्रणाम. आप कहाँ से आए हैं? हम भी ऋषिकेश से आए हैं. ओके. और स्वामी देवभूमि स्वामी सेवानंद जी, स्वामी सेवानंद सरस्वती ऋषिकेश, और उन्हीं का हम पोता चला हूँ पोथा. और हमारे गुरु जी का नाम स्वामी निरंजन सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा. आपको कैसा लगा यहाँ आपने पार्टिसिपेट किया? यहाँ पर तो हमको बहुत अच्छा लगा है. पहला बात है कि जो हमें मानव धर्म के बारे में बताते हैं, खाली मानव धर्म के ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं बोलना चाहिए, परंतु एनिमल राइट्स होना चाहिए, प्लांट्स राइट होना चाहिए, ट्री जो होता है पेड़ पौधा के सभी के लिए मतलब कि अच्छे, मतलब सभी लोग को ज़िंदगी जिए, इसी के बारे में ये चर्चा होना चाहिए और इसके लिए हमको अच्छा लगता है. अच्छा, आप पहले भी कभी आए हैं या पहली बार है? अब मैं आई वॉज इन 2018, हम 2018 में आए थे टोरंटो में पार्लियामेंट वर्ल्ड में. 2021 में वर्चुअल मीटिंग में था. ये हमारा थर्ड. तो ये आप यहाँ से क्या संदेश लेकर के जा रहे हैं? बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन हमको एक चीज़ संदेश लग रहा है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एक्चुअली द आउटकम ऑफ द पार्लियामेंट वर्ल्ड religions, but that I don't exactly find out yet, although I have been 3 parliament world religions, but that I have to work out practically. He's trying to say all these alliances, all these organizations
when you are doing it, if it stays on paper and we don't have any implementation, it doesn't mean anything in today's time. It should come into action. What they are saying, it should be practiced. We always believe in first you practice, then you preach. But here it's only about discussing, bringing more people. So that if that stays, so then the purpose of having the conferences leaves no meaning. धन्यवाद आपका हमसे बात करने का. Your name for record, please? I'm Guru Dilip ji. Guru Dilip ji, welcome to TV Asia. Let's hear from you what brought you here and your experience, because we are almost about to conclude now. Currently, I'm the global chairman of the World Yoga Community, which is an accredited NGO to the United Nations. Last 25 years, I'm working with the NGOs at the UN, and I am secretary for the religious NGO committee at the UN too. So, as an interfaith minister and a yoga master, this is my passion to bring people together, have a dialogue first, then slowly make friendship, then slowly go for the action. I know everything cannot change very fast, but a lot of changes are happening. When I compare since 80s, now is the big changes going on around the globe. I know a lot of problems around the world, not because of us, general public, because of the political dogmas or religious dogmas or business dogmas is happening. So we had to make friendship with them, bring them to the table, demand what we want. Yoga means union. And Honorable Prime Minister from Bharat, India, Mr. Narendra Modi, many years ago, he came and made a call to United Nations to have an International Yoga Day. Since you're involved with the yoga, let's hear from you. How do you feel now when 181 countries accepted, now yoga is become worldwide phenomenon? I had to thank Modi ji fulfilling my project, Yoga Day. I started in 93 and he finished at the UN. I'm so proud. We have a Prime Minister supporting the yoga movement, and a lot of time people blame him or they are angry with him, but I didn't see. He is not a bad person. He is thinking about the public. He's not a corrupted person, and it will take time to make the changes. He's in the path. Thank you so very much. Enjoy your rest of the evening. Appreciate. Your name? आपका नाम? आचार्य स्वामी अभय दास. आचार्य जी, let's hear from you. आप यहाँ आए, आपने पार्टिसिपेट किया. What language would you like to speak? हिंदी is ठीक. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप आए हैं, कहाँ से आए आप? मैं भारत में राजस्थान से आया हूँ. जी. सबसे कलरफुल स्टेट, मेरी फेवरेट स्टेट. आई ऑलवेज से दैट. खाना बहुत सुंदर, वस्त्र बहुत सुंदर, रंगों की बौछार है वहाँ. तो आपसे जानना चाहती हूँ, आपको कैसा लग रहा है आज अब हम ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर जा रहे हैं, अभी कंक्लूडिंग सेशन है. सबसे बड़ी बात, यह ऐसा स्थान है जहाँ पर आप धर्म को एक गुलदस्ते के रूप में देख सकते हैं. कितने अलग अलग कलर के धर्म हैं. मैनी कलर्स ऑफ रिलीजन यू कैन सी हियर. और न सिर्फ यहाँ पर अलग अलग रंग हैं, यहाँ पर धर्म की अलग अलग विधाओं को, अलग अलग परंपराओं को समझने का एक बहुत ही सुलभ अवसर मिलता है. ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर पूरी दुनिया के जो आज की परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया बस एक दूसरे देश से आगे बढ़ना चाहती है या एक दूसरे को नीचे दिखा कर के आगे बढ़ना चाहती है, जहाँ पर लोग इस सोच के साथ जी रहे हैं कि मैं ही सबसे ऊपर रहूं, मैं ही सुप्रीम पावर का धनी बनूं. जहाँ पर ये सुप्रीम पावर का धनी बनने की सोच आती है ना, वहीं से ही विनाश स्टार्ट हो जाता है, वहीं से विनाश प्रारंभ हो जाता है. मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दिन में 4 बार पीस पीस पीस, लव लव लव, इसके नारे लगाए जाते हैं. स्लोगन को जन जन तक पहुँचाया जाता है. ये एक ऐसा स्थान है जो शांति की पुकार पूरे विश्व में कर रहा है. मैंने अंदर कुछ ऐसे पोस्टर्स देखे जो वास्तव में ज्वलंत हैं, जिनको देख कर के अभी भी दुख होता है कि लोग अभी भी वही कार्य करना चाहते हैं जिसमें विनाश हो रहा है, जिसमें त्रासदी होगी, जिसमें लोग एक दूसरे को जलाएंगे, जिसमें मानवता शर्मसार होगी. ऐसा कार्य करने का प्रयास आज भी लोग करते हैं. तब हमने कल भी उस चीज़ को कहा था कि आप लोग ऐसा मत करिए. ये एक ऐसा मंच है जो शांति, सद्भावना और प्रेम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है. मैं राजस्थान से आया हूं. आप सोच सकते हैं दुनिया के एक ऐसे स्थान से जहां पर शायद मुझे लगता है कि मैं राजस्थान का कोई पहला या दूसरा ही साधु होऊंगा जो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए आया. और ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसको हमें समझना होगा कि यहाँ आकर के हम कर क्या रहे हैं. यहाँ आकर के हमें समझना है धर्म की अलग अलग विधाओं को. लेकिन कल एक डिस्कशन के दौरान मैंने एक चीज़ को समझने का प्रयास किया कि हर जगह एक सुप्रीम पावर है जिसे हम भगवान कहते हैं, और बाकी सारे ही उनको मानने वाले लोग हैं.
यह समानता हर धर्म में, बस इस समानता को लेकर के हमें चलना है कि हु आई एम और व्हाट वी हैव टू डू, और हमें क्या अचीव करना है, क्या हमारा गोल है, मैं कौन हूँ यहाँ से जो यात्रा शुरू होती है और मुझे क्या पाना है, यही आध्यात्म है और आध्यात्म को समझने का ये मंच है। आप भारत की उस भूमि से आए हैं जहां हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जी। भारत इस वक्त G20 को होस्ट करने वाला जी। है, 20 राष्ट्र के लोग वहां जाएंगे, अध्यक्ष जी। जो है, जी। ये कुछ ही हफ्तों की बात रह गई है। जी। भारत कल, भारत आज, नया भारत और ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, कुछ आप इस संस्था के लिए बोलना चाहेंगे? देखो, इस बार का ना सिर्फ G20 भारत को प्राप्त हुआ है, ये गौरवपूर्ण क्षण है हम भारतवासियों के लिए या हम पूरे देशवासियों के लिए कि इस बार का पार्लियामेंट भी देश की संस्कृति को ही समर्पित रहा। जहाँ देखो कहीं जैनिज़्म, कहीं हिंदुइज़्म, कहीं वैष्णविज़्म, जैसे मैं वैष्णविज़्म से आता हूँ तो हिंदुइज़्म के भी अलग अलग पार्ट, अभी समर्पणानंद स्वामी बोले तो वो संन्यास परंपरा, शिव परंपरा से होंगे। गुरु दिलीप जी अभी आपने सुना, वो भी सब अलग अलग परंपरा। भारत की लगभग सारी परंपराएं आई और इतना अद्भुत रहा। चाहे ओपनिंग प्लेनरी सेशन हो जहाँ पर भारत देश के ही एक साधु के द्वारा संबोधन दिया गया हो, चाहे अभी अंतिम ये क्लोजिंग प्लेनरी हो जहाँ पर मैं अभी तक रुका हुआ हूँ और भी कई संत यहाँ पर रुके हुए हैं। पूरा कार्यक्रम जो है इस बार भारत देश की संस्कृति को समर्पित रहा और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसे मेरे जितने दर्शक अभी आपके ये देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं बताना चाहूँगा ये सदी भारत की है और न सिर्फ भारत की है, भारत का, हाँ, भारत का होने का मतलब है ये सदी इस विश्व की है, क्योंकि भारत तो विश्व को परिवार मानता है। तो ये सदी शांति, सद्भावना और प्रेम को जीने वाले लोगों की है, अर्थात भारत की सदी है, ये अमृत काल है। और मैं इसके लिए देश की जो ये जितनी विभूतियाँ हैं, जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, इसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को भी मैं यहाँ पर आज उनके कार्यों को प्रणाम करूँगा कि बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। चाहे योग दिवस को विश्व तक पहुँचाना हो, चाहे देश को इन ऊंचाइयों तक ले जाना हो। हमारे सांस्कृतिक ये साल मिलेट ईयर है। यस, ये भी मोदी जी का ही देन है, उन्होंने कॉल किया। अगर आप जानते हो ये जो मोटा अनाज था, पहले कहा जाता था गरीब लोग खाते हैं, और अब जो है मैं 1 पाउंड मिलेट लेने के लिए मैं $6.5 लगाती हूँ और आटे की जो है 20 पाउंड की बोरी को मैं $12 में खरीद के लाती हूँ। 2023 जो है वो मिलेट ईयर प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। और आपको मैं बता दूं, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि राजस्थान के मेरे एक कार्यक्रम में ही देश के कृषि मंत्री ने इस मिलेट ईयर का आगाज़ किया था। मेरे ही एक कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह जी तोमर पधारे थे और वहाँ पर आकर के उन्होंने मिलेट ईयर, हमने उस दिन 1000 बोरी जो है, एक बोरी में 100 kg 100 kg होता है, 1000 बोरी उस दिन हमने हमारे निम्न वर्ग के लोगों तक पहुँचाई थी मिलेट की। धन्यवाद, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। आपका नाम? संजीव मेहता फ्रॉम गुजरात, गांधीनगर। संजीव जी, आप यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। आपका आज ये कंक्लूडिंग सेशन है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके हाथ में ये 3 जो है हम बोलते हैं कि बुरा नहीं देखूँ, बुरा नहीं बोलूँ, बुरा नहीं सुनूँ, और गीता, हम गीता वो है कि द मैसेज ऑफ गीता 700 श्लोक करते हैं, और ये शिकागो एड्रेस ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था आई एम एड्रेसिंग यू फ्रॉम द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो जब 1893 सितंबर 11 तालियां ऐसे बजी, तो आप क्या संदेश लेकर के यहाँ आए हैं? हम लोग यहाँ भारतवर्ष से आए हैं, वननेस एग्जिस्टेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ऑल वर्ल्ड वन फैमिली के लिए आए हैं। लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड, मुझे बहुत दुख हो रहा है, साथ में क्रोध भी हो रहा है कि कुछ लोगों ने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स के आत्मा को मार दिया है। अभी कुछ दिनों की ही बात है, आपने देखा होगा अमेरिका के गवर्नमेंट ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बुलाया, आयोजन भी किया और कितना बढ़िया मैसेज दिया बाइडेन सर और मोदी जी ने पूरे विश्व को आगे बढ़ने के लिए साथ में, और ह्यूमन राइट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात की कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड बेस्ट डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स में मानती है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर हिंदुइज़्म और रेट इतना बढ़ा दिया, हेट इतना बढ़ा दिया
कि हमारे प्रधानमंत्री और हिंदुइज्म को कलंकित करने का काम किया है, उसका मैं पूरा दिल से विरोध करता हूँ। ये कैसे चलेगा? हमारे नरेंद्र दत्त, जो स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इसी धरती से पूरे विश्व को वननेस एग्जिस्टेंस का संदेश दिया, और हमारे शांतिदूत प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी यही पथ पे आगे चढ़ के नया भारत का निर्माण किया। और हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने हमें ये 3 मंकी वाला संदेश दिया कि भाई बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का मैं नाम लेना नहीं चाहता, पर वो बार बार ये गलतियाँ करते रहते हैं। वो अब नहीं चलेगी। भारतवर्ष अब उठ चुका है, भारतवर्ष अब जाग चुका है। ऐसी बाधा आने के लिए हम तैयार हैं। हम दुनिया को प्यार का संदेश देना चाहते हैं कि आओ साथ मिलके हम आगे बढ़े। और आपने देखा होगा G20 की प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है, और क्या सूत्र दिया हमारे प्रधानमंत्री ने? 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। तो हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के ये सेंटर को और ये संस्था को और ये कार्यक्रम को कुछ लोगों ने हैक करके रख दिया है, अपने काबू में रखा है। भारत के संतों को बोलने से रोका जा रहा है, भारत के सोशियो पॉलिटिकल लीडर्स को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये बात ठीक नहीं है। ये हमारे शांतिदूत नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के लोगों के लिए जो काम किया है, जो भारत उठ खड़ा हुआ है, ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि आपका संदेश वहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। Vandana Jingan from Chicago, McCormick Place.